Hello students. In the last video we have discussed about the commutativity property of whole numbers, integers and rational numbers. In last both videos we have discussed like that properties or like that things in regarding to the lesson rational numbers. Today onwards I am going to start here one new property, one new point that is also regarding to the rational number. But first of all, as you know that very well, we have starting first of all regarding to whole numbers, then we are discussing about integers, and then we are going to rational numbers. That is better for understanding and that is better for our convenience also, okay, and that is beneficial for us also. That's why here I have written associativity. Today I am going to start the next property from this lesson, that is belongs to the rational number, whole numbers and integers. First of all, I have taken here whole numbers and I am going to start without wasting time. Associativity. What is meant by associativity? As you know that we are preparing table, okay, like that table today also I am going to prepare. First of all, here we are writing operations, here we are writing numbers, and you know that here we are writing remarks. Here we are writing what? Remarks. I have written as usual operations, numbers and remarks. Now I am going to start first operation regarding to whole number and which property? Associativity. What is the name of property? Associativity. First operation. Look here. What is first operation? Now ये बाहर हुआ होगा तुमको addition. Which is the first operation? Addition. What is the change? What is the change in closure property, commutativity property and in this associativity? That change I will tell you only. In the closure property and associativity property, we have taken two numbers and we have nominated over there number A and number B. ऐसा हमने लिया था. पहले नंबर को हमने बोला था A, दूसरे नंबर को हमने बोला था B. करेक्ट. तो अभी इधर हम A और B के साथ ही साथ और एक नंबर लेने वाले हैं, तीसरा नंबर, उसको हम बोलेंगे आज C. ओके, लुक हियर. फर्स्ट एग्जांपल आई विल टेक associativity के लिए. फर्स्ट एग्जांपल 5 प्लस 6 प्लस 7. कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली एडिशन, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल लिया है 5 प्लस 6 प्लस 7. इसका एडिशन करो, क्या होगा? 5 प्लस 6 प्लस 7 13 इज इक्वल टू कितना आंसर आया? 18. करेक्ट, एम आई राइट? 5 प्लस 6 प्लस 7 ये एग्जाम्पल है हमारा, इज इक्वल टू हमने क्या किया? 5 ऐसे कैसे रखा? 6 प्लस 7 का पहले एडिशन किया और बाद में हमने आंसर लिखा 18. ओके, एंड इसको चेंज क्या करना है? देखो अभी इधर ध्यान से देखो तुम, 5 प्लस 6 प्लस 7 यानी कि इधर दूसरा और तीसरा नंबर मैंने ब्रैकेट में लिखा है. दूसरा और तीसरा नंबर मैंने क्या लिखा है? इधर ब्रैकेट में लिखा है. एज यू नो दैट पहले नंबर को हम क्या बोलते हैं? ए. दूसरे नंबर को हम क्या बोलते हैं? बी. और अभी तीसरा नंबर इधर ऐड हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सी. यानी कि ए बी सी वी हैव कंसिडर्ड. ओके, तो मैंने अभी इस पहले स्टेप में क्या किया? ए प्लस बी और सी को ब्रैकेट में लिखा और बी और सी को ब्रैकेट में लिखने के बाद उसका एडिशन किया. देखो इधर पहले नंबर को एडिशन में एज इट इज लिखा है इधर मैंने, और दूसरे और तीसरे का एडिशन करके इधर लिखा और बाद में इन दोनों का एडिशन किया. आर यू गेटिंग? तो अभी उल्टा करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे. कैसा करेंगे? देखो अभी पहले और दूसरे को ब्रैकेट में लिखेंगे और तीसरे को सेपरेट लिखेंगे. ओके, क्या आता है? देखो एडिशन 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18. मीन्स हियर वी गॉट फॉर एनी 3 होल नंबर्स, हियर वी हैव रिटन, ओके, एनी 3, कौन से भी 3 होल नंबर्स ले लो, 3 होल नंबर्स ही लेने हैं, कौन से भी 3 होल नंबर्स ले लो और ऐसा एडिशन करके देखो. ऐसा एडिशन करके यानी कि इधर कैसा लिखते हैं हम? फॉर एनी 3 होल नंबर्स, for any 3 whole numbers. What I have written? For any 3 whole numbers. What we got here? पहला नंबर हमने सेपरेटली लिखा इधर प्लस, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू आया. इधर भी 18 आंसर, इधर भी 18 आंसर, इज इक्वल टू. इधर देखो क्या है? पहला और दूसरा नंबर सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या लिखा? ब्रैकेट में लिखा प्लस तीसरा नंबर आउटसाइड को लिखा. यानी कि व्हेन वी आर राइटिंग a plus b in the bracket b plus c, then we are getting is equal to a plus b in the bracket plus c. Are you getting? A
ये दोनों ब्रैकेट में लिखने के बाद जो एडिशन आती है वो अगर पहले में एडिशन की मिलाई जाए तो सेकेंड कंडीशन कौन सी है, पहला और दूसरा का एडिशन प्लस तीसरे का एडिशन। अगर ऐसा एडिशन किया जाए तो हमें वो इक्वल आंसर आ रहा है। हियर वी गॉट 18 एंड 18 आंसर। हियर वी हैव टू राइट एडिशन इज एसोसिएटिव। लास्ट टाइम हमने लिखा था एडिशन इज कम्यूटेटिव, लाइक दैट वी हैव टू राइट हियर एडिशन इज। अदरवाइज दूसरे वर्ड में भी हम लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव इन, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव इन एडिशन, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं इधर शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखता हूं, देखो एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज व्हाट, एसोसिएटिव। समझे? आर यू गेटिंग, डू यू अंडरस्टैंड? यही हमारी कंडीशन है आज की। सब्ट्रैक्शन में हम ऐसे ही करेंगे, पहले दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी देखेंगे, वी विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ऑल्सो। सेकेंड ऑपरेशन कौन सा होता है, सब्ट्रैक्शन। ओके, आई विल टेक हियर वन एग्जांपल। सपोज आई हैव टेकन हियर एग्जांपल 6 माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू, ओके, अब इधर देखो, पहला जो नंबर है बाहर लिखा है, और बाकी के दो नंबर अंदर लिखे हैं, उनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ये सब्ट्रैक्शन साइन बाहर ही रहेगा क्योंकि ये तीनों का सब्ट्रैक्शन है। देखो 6 माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस 8, तो आंसर क्या आता है, देखो 6 माइनस 2 माइनस 8 कितना हो गया, -6, तो ब्रैकेट में आ गया -6। डू यू अंडरस्टैंड? अभी -6 कैसे, 2 का साइन इधर प्लस है, ब्रैकेट में साइन प्लस है, बाहर माइनस होगा लेकिन ब्रैकेट में साइन प्लस है, प्लस और माइनस, तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा। इनका सब्ट्रैक्शन होते वक्त क्या होगा, 8 इज द ग्रेटर नंबर, तो 8 में से 2 गए, बच्चे कितने, 6, और 8 का साइन कौन सा है, माइनस, इसलिए अंदर क्या आ गया, माइनस साइन। ओके, अभी इधर देखो क्या होगा, 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू आंसर कितना आया, 12। ओके, अभी रिवर्स करेंगे, यानी कि इस सिचुएशन में लाएंगे, पहले दो ब्रैकेट में ले लो, यानी कि 6 माइनस 2 और आउटसाइड में -8, करेक्ट है। हमने अभी पहले दो को ब्रैकेट में लिया और तीसरा नंबर एज इट इज आउटसाइड लिखा। देन 4 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू, इधर देखो आंसर क्या आएगा। ओके, दोनों का साइन डिफरेंट है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 8 में से 4 गए 4, 8 का साइन है माइनस, तो आंसर आया -4। इधर दोनों आंसर सेम है, इधर 12 है इधर -4 है, इधर दोनों आंसर सेम नहीं है, तो ऐसे ही हम लिखना है, बार बार यही सेंटेंस लिखना है। फॉर एनी 3 होल नंबर्स, कौन कौन से होल नंबर्स है, फॉर एनी 3 होल नंबर्स A, B एंड C, फॉर एनी 3 होल नंबर्स A, B एंड C। इधर A, B, C की वैल्यू हमने 5, 6, 7 ली थी, इधर हमने 6 to 8 लिया है, यानी कि कौन से भी होल नंबर्स तुम ले सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी 3 whole numbers A, B and C, for any 3 whole numbers A, B and C. Here we not got, what we not got, A minus in the bracket B minus C is not equal to A minus B outside the bracket C. Are you getting what I have written? Do you understand? Try to understand, look what I have written here, what I have written, for any 3 whole numbers A, B and C. Here we not got A minus in the bracket B minus C is not equal to A minus B, ब्रैकेट के आउटसाइड क्या है, -C, ऐसा हमको नहीं मिला है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। क्या लिखेंगे इधर हम, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि इक्वल नहीं आया आंसर, 12 और -4 आया, तो नॉट एसोसिएटिव। अभी हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तीसरा ऑपरेशन है, थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी एक एग्जांपल लेता हूं मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखो इधर, सपोज आई हैव टेकन एग्जांपल 7 इन ब्रैकेट 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, हम करेंगे पहले क्या आता है, देखो 7 एज इट इज, 2 इंटू 5, 7 एज इट इज मैंने लिखा है, 2 इंटू 5 कितना आता है, 10, तो आंसर कितना आएगा, 7 इंटू 10 70। नेक्स्ट, एंड
ये पहला और दूसरा हम ब्रैकेट में डालेंगे पहले 7 इंटू 2 इंटू 5 7 इंटू 2 14 इंटू 5 एंड व्हाट विल गेट आंसर 70. गॉट आइडिया? डू यू अंडरस्टैंड? इधर देखो फॉर एनी 3 होल नंबर्स, यही स्टेटमेंट फिर से इधर हम लिखने वाले हैं. फॉर एनी 3 होल नंबर्स, कौन से होल नंबर्स? फॉर एनी 3 होल नंबर्स a, b and c. what we got here? ये लिखेंगे a into in the bracket b into c is exactly equal to the a into b outside the bracket c. got idea? a into in bracket b into c is exactly equal to the a into b outside the bracket c. यानी कि आंसर सेम आ गया इधर, तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. गॉट आइडिया? ओके. अभी बचा कौन? डिवीजन. अभी डिवीजन का फोर्थ प्रॉपर्टी, डिवीजन फोर्थ प्रॉपर्टी यानी कि फोर्थ ऑपरेशन. इधर भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. 4 डिवाइडेड इन ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू. अभी सॉल्व करेंगे. देखो 4 को ऐसे कैसा रखेंगे, डिवाइडेड साइन भी ऐसा है कैसा. 8 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा. और 4 को 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा? 1. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? 4 एज इट इज आई हैव केप्ट, डिवाइड साइन एज इट इज. 8 को 2 से डिवाइड करने के बाद 4 आंसर आता है, तो 4 डिवाइड बाय 4 आंसर आ गया 1. एंड अभी रिवर्स करेंगे. देखो 4 डिवाइडेड बाय 8 आउटसाइड द ब्रैकेट हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू. अभी डिवाइड करो इधर 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यानी कि इधर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 और उसको डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2. समझ में आ रहा है? उसको डिवाइड बाय क्या होगा? 2. तो ये कैसे होगा? देखो इधर लिखता हूं 1 बाय 2 ये ऑलरेडी, और ये क्रॉस होके उल्टा होके आता है. ये जो 2 होता है उल्टा होके आता है. लास्ट टाइम मैंने रैशनल नंबर में मैंने तुमको दिखाया था. देखो उल्टा नंबर होके आता है, तो ये भी क्या होगा? 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू आंसर आएगा 1 बाय 4. आंसर क्या आ गया? 1 बाय 4. यू अंडरस्टैंड? कैसे ये उल्टा होगा? उल्टा हो गया यानी कि 1 बाय 2. इधर मैं स्मॉल में इधर दिखा देता हूँ. देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 2. इसका मतलब क्या है? 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. तो ऐसा होता है. तो ये फाइनल में जाके ऐसा होगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू, ये 2 न्यूमरेटर को है और ये उल्टा होने के बाद 1 बाय 2 होगा. इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 1, ये उल्टा होने के बाद 1 डिवाइड बाय 2 होगा. 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4. तो आंसर क्या आ गया अपना? 1/4. ओके. डू यू अंडरस्टैंड? तो इधर देखो आंसर सेम है क्या? इधर 1 है, इधर 1/4 है. तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव. क्या लिखेंगे हम? डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव. डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव. आई थिंक यू गॉट आइडिया अबाउट इट. हमें क्या करना है? इधर 3 नंबर्स कंसीडर करने हैं. 3 नंबर्स में कंडीशन क्या है? 3 नंबर्स में कंडीशन क्या है? ऐसी कंडीशन बार बार हम यही लिखते जाते हैं. अगर आंसर सेम आया तो फॉर एनी 3 होल नंबर्स इक्वल टू लिखना है. आंसर अगर सेम नहीं आ रहा है तो फॉर एनी 3 होल नंबर्स नॉट इक्वल टू लिखना है. ओके. इधर पहले में एसोसिएटिव आया, दूसरे में नॉट एसोसिएटिव आया, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव आया, और डिवीजन में नॉट एसोसिएटिव आया. ओके. आर यू गेटिंग? दिस इज रिगार्डिंग टू द व्हाट? होल नंबर्स. नाउ वी विल सी रिगार्डिंग टू द इंटीजर्स. इंटीजर के बारे में हम अभी थोड़ा बहुत देखेंगे. देखो इधर आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंटीजर्स. इंटीजर्स के बारे में भी हम यही टेबल, इस टाइप का ही टेबल बनाएंगे, ऐसा ही टेबल बनाएंगे, और इंटीजर्स के बारे में भी ऐसा ही देखेंगे. ओके. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. लुक हियर इंटीजर्स. इधर क्या है? वी आर राइटिंग हियर operations. Here we are going to write numbers and here we are going to write remarks. Operations, numbers and remarks. Do you understand?
तो इधर भी हम क्या करेंगे, पहला ऑपरेशन एडिशन, विच इज द फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन। एडिशन में दो होल नंबर्स का पहले एडिशन करके, होल नंबर्स नॉट इंटीजर्स का हम क्या करेंगे, एडिशन करके देखेंगे। एडिशन करने के बाद अगर आंसर सेम आ रहा है जैसे हमने होल नंबर में किया, सेम यू आर गोइंग टू फॉलो हियर, ओके। और वही वैसे का वैसा ही लिखेंगे। एक पूरा एडिशन में करके दिखाता हूँ इधर, बाद में होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हम शॉर्ट फॉर्म में भी देखेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देखो इधर एडिशन, किसका एडिशन अभी करेंगे, इंटीजर्स का। अभी दो इंटीजर्स मैं लेता हूँ इधर, -2 प्लस इन द ब्रैकेट 3 प्लस -4। अभी सम ऑफ दे में थिंक, इधर माइनस माइनस लिया तो सब्ट्रैक्शन, इधर तो सर तुमने एडिशन लिखा है, आपने एडिशन लिखा है, और इधर माइनस माइनस नंबर लिखे हैं। ये माइनस नंबर जो है वो माइनस नंबर है निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में खाली प्लस नंबर ही नहीं आते, माइनस नंबर भी आते हैं, इसलिए मैंने इधर माइनस नंबर भी लिया है। प्लस साइन इट शोज दैट एडिशन, इधर प्लस है इधर प्लस है, तो ये क्या दिखाता है, एडिशन। तो इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या आता है, देखो -2 प्लस इन द ब्रैकेट 3 प्लस इंटू माइनस -4, ओके। तो इसके आगे हम लिखेंगे, देखो क्या आएगा, -2 3 -4 क्या आएगा, -3 -4 क्या आएगा, -1, ओके। तो -1, तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा, -3। व्हाट आइडिया, डू यू अंडरस्टैंड। ये एडिशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पॉइंट में हम ये एडिशन करने वाले हैं, इसलिए मैं ये डीपली बता रहा हूँ तुम्हें। अभी चेंज करेंगे, इधर देखो पहला नंबर आउटसाइड लिया, दोनों नंबर की एडिशन की थी, और दूसरे अभी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इधर देखो -2 प्लस 3, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस -4, ओके। यही एग्जांपल है, ये पहले और दूसरे को ब्रैकेट में रखा है और तीसरे को आउटसाइड, इज इक्वल टू -2 प्लस 3 प्लस -4, क्या आता है देखो, इज इक्वल टू -2 प्लस 3 क्या आएगा, +1, और ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस -4, ओके, इज इक्वल टू, ये दोनों अपोजिट साइन है, 1 का साइन है प्लस और 4 का साइन है माइनस। अपोजिट साइन में होती है सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन यानी कि क्या, 4 में से 1 गया, क्योंकि ग्रेटर नंबर से ही स्मॉलर नंबर जाता है, तो 3 बचे, और ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, तो -3। दोनों आंसर देखो, -3 -3। अगर -3 आ गया तो इधर हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, पिछले टाइम हमने लिखा था फॉर एनी 3 होल नंबर्स लिखा था, इधर क्या लिखेंगे, फॉर एनी 3 इंटीजर्स, क्या लिखेंगे, फॉर एनी 3 इंटीजर्स। कौन कौन से इंटीजर, A, B एंड C। फॉर एनी 3 इंटीजर्स वी गॉट हियर A प्लस इन ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B outside the bracket C। we got here like that, same -3 तो इक्वल टू आएगा, तो इधर हम क्या लिखेंगे, एडिशन इज associative, addition is what, associative। got idea, are you getting, I hope so you are understanding these all points which I am telling to you। पहला हो गया एडिशन, तो अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, दूसरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। देखो मैं इधर एक एग्जांपल लेता हूँ, 5 माइनस इन द ब्रैकेट 7 - 3 इज इक्वल टू, अभी डायरेक्ट लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता हो चुका है। तो 5 माइनस 7 - 3 कितना आता है, 7 - 3 +4, ओके। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, +4 इज इक्वल टू 7 - 3 +4, क्योंकि 7 में से डायरेक्ट 3 गए, ग्रेटर नंबर है 7, उसका साइन है प्लस, तो +4, तो 5 - 4 आंसर आएगा 1। देखा क्या क्या है, देखो 5 - 7 - 3, ये मैंने एग्जांपल लिया और उसका सब्ट्रैक्शन किया, 5 और माइनस साइन एज इट इज लिखा, 7 - 3 क्या आ गया, +4, तो बाद में ब्रैकेट ऑफ हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो 5 - 4 1 आ गया, ओके। इसको अभी रिवर्स करेंगे, देखो 5 - 7 पहला और दूसरा नंबर ब्रैकेट में, तीसरा नंबर आउटसाइड, 5 - 7 इधर ग्रेटर नंबर है 7, 7 में से 5 गए, बचे 2, ग्रेटर नंबर है 7, उसका साइन है माइनस, तो माइनस, और आउटसाइड द ब्रैकेट क्या है, -3।
आंसर कितना आया, दोनों साइन सेम है तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, इधर एडिशन ही होगा। 2 + 3 कितना हो गया 5, और साइन कौन सा है माइनस, तो आंसर कितना आया -5। अभी इधर देखो आंसर सेम है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, डायरेक्टली इधर लिखता हूं देखो, a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस सी। तो इधर हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन is not associative. Subtraction is not associative. Do you understand? I hope so you are understanding. तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। ओनली क्या करना है देखो, अगर स्मॉल तरह से समझ में आ गया तो मेरे अच्छी तरह से समझ में देख रहे हो तो समझ में आएगा। पहले कंडीशन में दूसरा और तीसरा नंबर ब्रैकेट में, इधर देखो, और दूसरे कंडीशन में पहला और दूसरा नंबर ब्रैकेट में, यही है, इधर भी लिखते हो मैंने वैसे ही लिखा है मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल लेंगे अभी, 5 × -7 × 8, ब्रैकेट में क्या है 5 × -7 × -8 लेंगे। ओके, क्या क्या है देखो, 5 × -7 × -8, तो क्या आता है देखो, 5 × माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 7 × 8 56। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आंसर आएगा 280। 5 × 6 30, 0 रिमेन 3, 5 × 5 25 + 3 28। हमें आंसर क्या आया 280। अभी चेंज करेंगे सिचुएशन, 5 × -7 × -8, व्हाट वी गॉट, इन द सेकेंड कंडीशन 5 × -7 × -8, ये माइनस साइन है, इज इक्वल टू 5 × 7 35 प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू -8, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 35 × 8 280। आर यू गेटिंग, यानी कि क्या हुआ, a इंटू इन द ब्रैकेट b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b आउटसाइड द ब्रैकेट c, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज associative, समझे, आंसर सेम एसोसिएटिव, आंसर नॉट सेम नॉट एसोसिएटिव। डिवीजन में एक एग्जांपल लेता हूं देखो, ओके समझो, मैंने एग्जांपल ऐसा लिया -10, ओके, पहले एग्जांपल में हम क्या करते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, पहले एग्जांपल में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट पहले दो जो है वो ब्रैकेट में, दूसरा और तीसरा ब्रैकेट में लेते हैं, इधर पहला ही लिया मैंने, ओके, दूसरा और तीसरा ब्रैकेट में लेते हैं, और पहले इधर देखो, पहले इधर दूसरा और तीसरा ब्रैकेट में लेते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं, पहला और दूसरा ब्रैकेट में लेते हैं। अगर उल्टा भी किया जाए, ये इधर और ये इधर लिखा जाए तो भी चलता है, समझ में आ रहा है, ये इधर और ये इधर उधर भी लिखा जाए तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ये इधर लिखा, पहले ये हमने ये पहले लिखा और बाद में ये लिखा तो भी चलता है, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। इधर वही करना चाह रहा था मैं, लेकिन तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने वो कैंसिल किया। अभी एग्जांपल लेता हूँ देखो, रेगुलरली नहीं, जो उल्टा है वो उल्टा मैंने अभी बताया, यानी कि क्या, ये इधर और ये उधर, यानी कि पहला और दूसरा हमने पहले ब्रैकेट में लिया था और इधर पहला और दूसरा लिया था। पहले हम क्या करेंगे इसमें डिवीजन में, ये पहले लेंगे और ये दूसरा लेंगे। देखो इधर मैं लेता हूँ, इधर -10 डिवाइडेड बाय 2 आउटसाइड द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय -5। इधर देखो मैंने क्या किया, जनरली हम कैसे करते हैं, दूसरा पहला और दूसरा आरएचएस में लेते थे, अभी ये मैंने एलएचएस में ही लिया है, तभी चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है देखो, -10 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो -5 आएगा, डिवाइडेड बाय -5। क्या किया देखो, -10 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो -5 आएगा, डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो आंसर आ गया 1। ओके, अभी दूसरा देखो, -10 आउटसाइड लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, और दूसरे और तीसरे को लेंगे अभी ब्रैकेट में, 2 डिवाइडेड बाय -5। देखो मैंने क्या किया इधर,
पहले मैंने इधर क्या किया था, दूसरा और तीसरा पहले ब्रैकेट में लिया था और पहला और दूसरा दूसरे ब्रैकेट में लिया था, यानी कि RHS में, ये LHS में और RHS में किया था। अभी उल्टा किया है। क्या किया है देखो, पहला और दूसरा पहले ब्रैकेट में लिया और तीसरे को आउटसाइड रखा है और इधर दूसरे और तीसरे को लिया है, तभी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड करने के बाद इधर मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, अभी डिवीजन करके बार बार दिखाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है। इसका आंसर आता है -25। ओके, तो इधर देखो -5 -25, आंसर डिफरेंट है, तो डिवीजन इज नॉट, क्या लिखेंगे, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। समझे? डू यू अंडरस्टैंड? इधर हमने सारे इंटीजर्स लिए हैं, जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा, बाद में हमने कम्यूटेटिविटी में देखा, वैसे लिखना है। इधर मैंने लिख के दिखाया, ये पूरा फॉर्म है, मैंने नोट्स में वो पूरी लिख के दिखाया। इधर मैंने शॉर्टकट में तुमको सॉल्व करके दिखाया है। शॉर्टकट यानी कि क्या, A = A, ये देखो, ये इक्वल आया तो एसोसिएटिव, नॉट इक्वल आया नॉट एसोसिएटिव, इक्वल आया एसोसिएटिव, इधर नॉट इक्वल है यानी कि -5 -25 है, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। इधर -5 आया, इधर -25 आया, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। गॉट आइडिया? ऐसे तुम्हें नोट्स के लिए मैं अभी पेजेस दिखा रहा हूँ, वो पेज तुम नोट्स में कॉपी करो एज इट इज। पहले होल नंबर्स का पेज दिखाता हूँ, देखो इधर ध्यान से देखो। ओके, देखो इधर एसोसिएटिविटी, सारे एग्जांपल्स इधर पूरा लिखा है, वैसे के वैसे नोट्स में कॉपी करो। ये हो गया डिवीजन, ये हो गया होल नंबर्स का। दूसरा है कौन सा, इंटीजर्स का। ये देखो इंटीजर्स, इधर मैंने डिवीजन पूरा करके भी दिखाया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम कॉपी कर सकते हो। गॉट आइडिया? इधर देखो पहला और दूसरा लिया था, लिखते वक्त ऐसे लिखा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये उल्टा इधर लिखोगे ये उधर लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डिवीजन इज नॉट associative. I hope so you got idea about the associativity property. Remaining points regarding the rational number we will continue in the next video. Thank you.